السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। समीन मोहतरम, गुज़श्ता ग़ालिबन 2 खुतबा जुमा से मुसलमानों के चौथे खलीफा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
سیرت کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہی ہیں۔ آپ کی شان کے اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلو قرآن و حدیث کی روشنی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اتنا باکمال ذات ہے کہ اطاعت میں، بے مثال شجاع میں، عدل و انصاف اور تقوی میں ایک روشن مینار ہے۔ ہر ایک مسلمان اور ہر ایک اہل ایمان کے لیے آپ کی ذات نمونہ عمل ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرنے والے شخص تھے، آپ کی بات کا، آپ کی ذات کا، آپ کے قول اور فعل کا کس انداز میں ادب و احترام کرتے تھے۔ سن 6 ہجری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے مدینہ سے عمرے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ پہنچے، کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچی، کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہونے لگا تحریری صورت میں۔ کفار کا جو نمائندہ آیا سہیل بن عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدے کو تحریری صورت میں نقل کر رہے ہیں۔ جب اس تحریری پیپر کا شروع کیا، اس کو آغاز کیا، تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھی۔ سہیل بن عمر قریش کے نمائندے نے کہا، لفظ الرحمن جو بسم اللہ میں آتا ہے اس کا انکار کر دیا ماننے سے، ہم اس سے نہیں مانتے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی۔ آخر کار آپ نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آگے آپ لکھیں، اکتب ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھیں یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کی ہے۔ جب یہ جملہ قریش کے نمائندے نے سنا، سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو ہم آپ کو کبھی بھی مکہ میں داخل ہونے کے لیے نہیں روکتے، ہم تو آپ کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، سارا جھگڑا تو رسول اللہ پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ آپ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی سے فرمایا، آپ کاتب ہیں، لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں امہ رسول اللہ، آپ ایسا کریں اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، لفظ رسول اللہ کو آپ مٹا دیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا، آگے کہتے ہیں لا واللہ لا امحوک ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے نام کو کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، اللہ کی قسم ہے، آپ کے نام کو میں مٹانے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بذات خود آپ نے قلم پکڑی اور قلم کے ساتھ بذات خود آپ نے لفظ رسول اللہ کو آپ نے مٹا دیا، اور آپ نے محمد بن عبداللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लिखवा दिया। यहां पे रुक के एक नुक्ता समझे आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुमकिन है ये मैं आपको यहां से इज्तिहाद करके अपनी एक राय बता रहा हूं, मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लम के नाम को नहीं मिटवाना चाहते थे, इस वजह से कि अल्लाह ताला को ये इल्म था कि बाद में आने वाले लोग जिस अंदाज में रबीउल अव्वल के जब अयाम आती हैं तो मुख्तलिफ वो केक लेके चीजें लेके आपका नाम लिख के उसको काटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को अल्लाह ताला शेर खुदा के हाथों से ये नहीं मिटवाना चाहते थे। लोगों के यहां कहीं ये दलील ना बन जाए कि शेर खुदा ने तो आपका नाम मिटाया था तो हम भी कर सकते हैं, किसी के पास ये हुज्जत और दलील ना बन जाए, इसलिए अल्लाह ताला और शेर खुदा के हाथों से इस नाम को नहीं मिटवाना चाहते। बाकी वल्लाहु आलम, आगे चल के इसकी वजाहत करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तहरीर लिखवा दी, लिखवाने के बाद शेर खुदा ने अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ने आपके नाम को ना मिटाना जो आपने इनकार किया है, ये नाफरमानी के जुमरे में नहीं है, ये आपके साथ एक मोहब्बत थी और आपके साथ एक अदब का जो इजहार और ताल्लुक था, ये उसी चीज को आपने जहर किया है, नाफरमानी के जुमरे में नहीं आता। आप देखें कितनी कमाल की बात है, ये तो नाम मिटाने की बात थी। शेर खुदा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे एक खराश आना भी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक खराश, नाम मिटाना तो दरकिनार रहा, एक खराश भी आपके जिस्म मुबारक पे आए, सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला को यह भी बर्दाश्त नहीं है। कैसे? जब आपने फरमाया था, अय अली ये अमानते हैं, आप मेरे बिस्तर पे सो जाए, हिजरत की रात मेरे बिस्तर पे सो जाए, ये अमानते हैं, और ये अमानते लोगों को दे के सुबह आप मदीना की तरफ आ जाना या मदीना की तरफ सफर करके आ जाना। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ने जब अमानते ली, आपके बिस्तर पे सोए, आपको इल्म था, सैयदना अली को इल्म था, आप जानते थे कुरैश के मुसल्लह नौजवान इन्होंने आप सल्लम के घर का मुआसरा किया हुआ है, मुमकिन है, करीब है, ये हमला भी कर सकती हैं, क्योंकि जब मुआसरा किया हुआ है ये हमला भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर बिस्तर पे सो गए। आपका बिस्तर ओढ़ा, हजमी चादर के मुतालिक जिक्र आता है, आपकी वो मुबारक चादर भी ओढ़ी, आपकी मुबारक बिस्तर पे सो गए, अपनी जान की परवाह किए बगैर इस अजीम कुर्बानी को, इस अजीम अमल को, इस अजीम इताअत को, इस अजीम फरमा बरदारी को कुरान ने इस अंदाज में नकल किया है। वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, फरमाया कि ये लोग, ये अजीम लोग, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को अल्लाह ताला की रजा के लिए बेच देते हैं। वमिनन नासी मन यश्री, अपनी जान को अल्लाह की रजा के लिए ये बेच देते हैं, ये अजीम लोग हैं। शेर खुदा अपनी जान की परवाह किए बगैर बिस्तर पे सो गए, मुमकिन है ये कुरैश के लोग अभी हमला करें और खत्म कर दे। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाम मिटाना तो दरकिनार रहा, आपके जिस्म पे एक खराश भी आना बर्दाश्त नहीं करते थे। इतना मोहब्बत, इतना उल्फत, शेर खुदा की सीरत से ये कितना बड़ा पैगाम मिलता है हमें। आगे चले, दूसरी बात देखें। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल बिदाया व निहाया, इमाम इब्न कसीर ने इस बात को नकल किया है, फरमाते हैं कि सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के खलीफा है, खिलाफत आपके हाथ में है, खिलाफत आपके कंधों पे मौजूद है, लेकिन आप काजी शुरैह बिन हारिस
रहमहुल्लाह ताला की अदालत में खड़े हुए हैं। वक्त के खलीफा है काजी शुरैह बिन हारिस रहमहुल्लाह ताला की अदालत में अब खड़े हुए हैं। मुकदमा दर्ज है और मुकदमा दर्ज करवा के अब खड़े हुए हैं। काजी शुरैह बिन हारिस रहमहुल्लाह ताला ये अजीम शख्स थे। अब इनके मुतालिक जरा सा सुने, कितना अजीम शख्स थे। सैयदना उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन तकरीबन 18 हिजरी में काजी शुरैह बिन हारिस को कूफे का काजी मुकर्रर किया था। सन 18 हिजरी में कूफे का काजी मुकर्रर किया था। काजी शुरैह बिन हारिस रहमहुल्लाह ताला उमर बिन खताब में के दौर में भी ये काजी रहे और उस्मान गनी के मुकम्मल दौर में ये काजी रहे और शेर खुदा के मुकम्मल दौर में ये काजी रहे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तदाई दौर में भी ये काजी थे और कूफे के ये काजी ही रहे और जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो फिर इस मनसब को छोड़ दिया है। काजी शुरैह रहमहुल्लाह ताला सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला की जिर्रा गुम हो गई। जिर्रा जो जंग के मौके पे पहनते हैं जिस्म के ऊपर बतौर ढाल के लिए, वो गुम हो गई थी। एक यहूदी के पास से मिली, दिखी गई। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा भी हैं, उस यहूदी के पास उस जिर्रा को लेने के लिए नहीं गए। जा सकते थे, उसे कह सकते थे, क्यों आपने अदालत का रुजू किया, अदालत की तरफ रुजू किया, काजी की तरफ रुजू किया। गए, जाके उस यहूदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कहा, ऐ काजी शुरैह रहमहुल्लाह ताला, मैं वक्त का खलीफा अगरचे हूं लेकिन अदालत में आया हूं, मेरी जिर्रा गुम हो गई थी, एक यहूदी के पास मिली है और दिखी गई है, ये मुकदमा दर्ज कर ले। मुकदमा दर्ज हो गया। काजी शुरैह ने उस यहूदी को बुला लिया। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अदालत में खड़े हुए। काजी शुरैह रहमहुल्लाह ताला ने कहा, ऐ अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जिर्रा आपकी है? जी हां, ये मेरी है। आपके पास सबूत क्या है? आपके पास सबूत क्या है? कौन पूछ रहा है? किससे? अदालत भी आपकी मातात है, लेकिन पूछा जा रहा है ये जिर्रा आपकी है, तो आपके पास सबूत क्या है? निशानी क्या है? अलामत क्या है? दलील क्या है? ये जिर्रा आपकी है, अब गवाह पेश करें। तो सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने जिर्रा को अपने लिए साबित करवाने के लिए अपने बेटे हसन को और अपने गुलाम कंबर रहमहुल्लाह ताला और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर गवाह के पेश किया। कादी शुरैह का यह असूल था, उसकी अदालत में यह कानून था कि बाप के हक में बेटे की गवाही काफी नहीं होगी, बेटे की गवाही काफी नहीं, कोई और गवाह ले है। फरमाया कि और कोई भी गवाह नहीं है। अब जब गवाह नहीं मिला, कादी शुरैह रहमहुल्लाह ताला ने फिर यह फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी से कहा कि यह जिर्रा आपकी है, आपके पास दलील सबूत है? कहा, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। यहूदी था, उसने कसम उठा ली और काजी शुरैह ने उसके हक में फैसला कर दिया। जब यहूदी ने देखा कि ये अदल है, ये इस्लाम का इंसाफ है, ये इतना अदल वक्त का खलीफे के हक में फैसला नहीं किया गया, यहूदी इस अदल को देख के उसका दिल इतना खुश हुआ, फौरन अपनी जबान से कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लेता है और मुसलमान हो जाता है। बाद में उसी मजलिस में खड़े होके इतराफ करता है, इजहार करता है, ऐ वक्त के बादशाह, वक्त के काजी, ये जिर्रा सैयदना अली मुर्तजा की है, ये मेरी नहीं है, ये शेर खुदा अली मुर्तजा की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उसी की जिर्रा है। जिर्रा को वापस कर दिया। यह है सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिससे हम मोहब्बत का इजहार इस कदर करते हैं। आप तो
ایک زرہ لینے کے لیے بھی آپ کے پاس طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، نفری بھی تھی، قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی عدالت کا رجوع کیا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ برابری کے طور پہ ایک خلیفہ ہے، عام مسلمان ہے، قانون دونوں کے لیے برابر ہے۔ اور اس اسلام کی عدالت میں جس طرح عام شہری عدالت میں پیش ہوتا ہے، وقت کا خلیفہ بھی عدالت میں اسی انداز میں پیش ہوتا ہے۔ اس عدل و انصاف کو دیکھ کے تبھی تو اسلام نے اس یہودی کے دل کو جیت لیا۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کسی کا دل کو جیت لے، عدل انصاف کو اپنے زبان کا اور اپنے عمل کا اور اپنے اعمال کا اپنا جسم کا زیور بنا لے۔ بیٹوں کے حق میں، بیٹیوں کے حق میں، اولاد کے حق میں، والدین کے حق میں، جو جس کا حق ہے، جو جس چیز کا لائق ہے، اس کے ساتھ عدل کیا جائے۔ عدل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ غیر مسلم کس طرح آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، اسلام کے ساتھ شہد کی مکھی کی طرح یہ بیٹھ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ عدل و انصاف میرے ساتھ ہو اور میرے اعمال سے وہ جھلک سے نظر آتا ہو۔ آئیے تیسری بات، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی منقبت کے حوالے سے بڑا کمال کا یہ جملہ ہے اور بڑی کمال کی یہ حدیث ہے۔ آپ کی منقبت اگر کچھ بھی نہ کہا جائے، یہ حدیث اور یہ آپ کا فرمان آپ کی منقبت کے لیے کافی ہے، آپ کے مناقب کے لیے کافی ہے، آپ کی سیرت کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا تھا، اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام میرے ہاں ایسا ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے تھا، لیکن یاد رکھے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات کو یہاں ایک عظیم نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤ۔ اس بات کو بعض ساتھیوں نے، بعض لوگوں نے دلیل کے طور پہ واضح ایک سری نص پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق علی مرتضیٰ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے، اسی طرح آپ نے واضح فرما دیا آپ کے بعد خلافت کا حق شیر خدا کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات غلط ہے، اس بات کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ ان جملوں کو نوٹ کر جائے، کہیں آپ کو بیٹھے ہوئے یہ چیز آپ کو ملے، یہ حدیث ملے تو آپ کے پاس جواب ہو دینے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب ہو، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کسی بھی معاملے میں اگر شریعت اسلامیہ کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیے ان دونوں خلافتوں کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے نائب ہارون علیہ السلام بنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ نائب بنے اور خلیفہ بنے، یہ دونوں باتیں درست ہیں، یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن ان دونوں کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، ان دونوں کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، موت کے بعد ان کا تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو خلیفہ بنے تھے وہ سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام بنے تھے۔ آپ کی زندگی میں ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تھے۔ اصل بات کیا ہے، اصل ماجرا اور واقعہ کیا ہے، اس بات کی طرف آتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، آپ بنی اسرائیل کے لیے اپنے نائب ایک مقرر کر کے گئے تھے ہارون علیہ السلام کو۔ پھر 40 دن کا جب عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی خلافت ختم ہو گئی، آپ کی جان نشینی ختم ہو گئی۔
इसी तरह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 9 हिजरी में आप तबूक की जंग के लिए जा रहे थे, वहां सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला से आपने फरमाया कि ऐ अली, आपने मदीना में रहना है, बच्चों के लिए, बच्चों के पास और खवातीन के आपने निगरानी करनी है, इंतजामी अमूर आपने संभालना है, आप मदीना में रहेंगे। शेर खुदा ने यहां एक गम का इजहार भी किया था, फरमाया था ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंगजू, जंग करने वाला, मुझे आप जंग के लिए साथ ले जाए, मुझे आप बच्चों के पास, औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। आपने इस मकाम पे फरमाया था अम्मा तकूनु मा अमा तरवा तकूनु अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ऐ अली, आप मेरे यहां उस मकाम को हासिल कर लो जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकाम को हासिल किया था। आप मेरे यहां उस मकाम को हासिल कर लो, लेकिन याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब आप वापस है मदीना में, सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की जो जान नशीनी थी, जो आप नैब बने थे, जो आप वक्त के खलीफा बने थे, आपकी नियाबत और आपकी जान नशीनी और आपकी खिलाफत आप सल्लम के वापस तशरीफ लाने पे खत्म हो गई। इसी तरह जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस कोई तूर से है तो हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान नशीनी खत्म हो गई थी। इन दोनों खिलाफतों का ताल्लुक जिंदगी के साथ है, मौत के बाद नहीं है। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो उनके खलीफा और जान नशीन बने थे वो तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, उम्मत की मुत्तफ़िका राय के बाद, आपके बाद जो खलीफा बने थे वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने थे। ये एक इश्काल है जो मैंने उस इश्काल को आपके सामने रख दिया। इस खिलाफत का ताल्लुक ये जिंदगी के साथ है, मौत के साथ इस खिलाफत का ताल्लुक नहीं है। अगर कहीं मौत के साथ होता तो जरूर हम इस बात को इसी तरह मानते जिस तरह आप शेर खुदा की फजीलत सुन रहे हैं। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना अजीम शख्सियत है। आखिरी बात, कितना अजीम शख्सियत है। आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर यह बात दर्ज है, फतेह खैबर से एक दिन पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को आपने फरमाया था लाउतियन रायता गदन रजुलन, कल इंशाअल्लाह मैं उस बंदे को ये इस झंडा थमाऊंगा, उसके हाथ में झंडा दूंगा खैबर का। उस बंदे की खूबी ये होगी, आपने खूबी पे गौर करना है, उस बंदे की खूबी ये होगी युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। उस शख्स की खूबी ये होगी कि उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने उसके हाथ पे खैबर को फतह रखा है, खैबर की फतह रखी है उसके हाथ पे। आपने किसी शख्स का तयन नहीं किया, किसी बंदे का आपने नाम नहीं लिया। सहाबा किराम रात भर नहीं सोए, कोशिश में रहे, बाज रिवायत में आता है दुआ में रहे, दुआएं करते रहे कल खैबर का झंडा मेरे हाथ में आ जाए। जिसकी इतना बड़ी खूबी है, अल्लाह अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करते हैं, ऐलान हो गया है, नबुव्वत की मुबारक जबान से ऐलान हो गया, वो भी अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। और कई दिन हो गए खैबर का किला फतह नहीं हो रहा, अल्लाह ताला ने उनके हाथों में खैबर के किले को फतह करवाना। ये खुशखबरियां ही खुशखबरियां है। सहाबा किराम इस खुशखबरी को पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते रहे, बड़ी कोशिशें करते रहे, दुआएं करते रहे। सुबह की नमाज हो गई, आपने सहाबा किराम की तरफ मुंह आपने फेरा और आपने पूछा। सहाबा किराम अपने चेहरों को आगे कर रहे हैं, उठा उठा के आगे कर रहे हैं कि आप मेरा नाम ले दे, मेरा नाम। कितनी बड़ी खुशखबरी है,
कितनी बड़ी खुशखबरी है। सहाबा की चाहत तो देखें, चाहत तो देखें खुशखबरी को पाने के लिए। लेकिन आपने पूछा आइन अली, अली कहाँ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा इकराम ने बताया उनकी आंखों में दर्द है। रिवायत में आता है उनकी आंखों में दर्द इतना था कि उनकी आंख को दर्द की वजह से सूज गई थी, सूजी हुई थी, और वो अपने खैमे में मौजूद थे, लेकिन कुव्वत हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने खैमे में मौजूद है, बताया गया उनकी आंखों में तकलीफ है। कहा बुला के लाओ, बुला के लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला, शेर खुदा की आंखों पे लगा दिया। आपने लगा दिया। लुआब लगाने के बाद आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आगे यहाँ एक अजीम नुक्ता भी है। आप फरमाती हैं जब से आपने मेरी आंखों पे अपना लुआब मुबारक लगाया, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में दर्द होता रहा, लेकिन जहां लुआब लगा था जिंदगी भर दर्द नहीं हुआ, जिंदगी भर दर्द नहीं हुआ। आपके लुआब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी थी। दुनिया कायनात का कोई शख्स भी खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे लुआब में शिफा है, नहीं है। सिर्फ लुआब में शिफा थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद नहीं है। फिर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला आपने, लेकिन आप देखें लुआब में शिफा भी इतना फौरी तौर पे ठीक हो गए, फौरी तौर पे, चंद दिन नहीं, चंद घंटे नहीं, फौरन अल्लाह ताला ने शिफा दे दी है। यानी लुआब में इस कदर तासीर अल्लाह ताला ने रखी है। फौरन आपने फरमाया आए अली, ये खैबर का झंडा है, ले लो। आपने रवाना करने से पहले फरमाया कि आए अली, चंद एक नसीहतें मेरी हैं। ये पहले वाक़या आपने सुना है, लेकिन जो असल बात मैंने बतानी है और सैयदना अली की जो शान शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है। ये जो बात है ये समझनी है। फरमाया कि मेरी चंद एक बातें हैं, आप अपने जहन में बिठा ले। कौन सी बातें हैं? आपने फरमाया कि अय अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये झंडा अब अपने हाथ में ले, खैबर का आप रुख कर ले, लेकिन आपने चलना है पुरवकार अंदाज में। अनकरा, आपने चलना है पुरवकार अंदाज में, लेकिन चलते हुए याद रखें आपने दाएं बाएं नहीं देखना। पुरवकार तरीके से आपने चलना है और आपने दाएं बाएं नहीं देखना। यानी यहां से पता चलता है इस्लाम ने चलने का तरीका भी बताया है। कूद खोद नहीं है, उछल कूद नहीं है इस्लाम में। पुरवकार तरीके से, एक उम्दा अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्लाम ने चलने को हुक्म दिया है। कहा पुरवकार तरीके से चले। हालांकि जंग का मौका है, जंग भी ऐसी कि कई दिन से फतह नहीं हो रही। फरमाया कि पुरवकार तरीके से चलना है, खूबसूरत अंदाज में चलना है। हमें भी शरीयत से यह सबक मिलता है, जब हम अपने पैरों से चल रहे हो तो शरीयत कहती है पुरवकार तरीके से चले, भागे नहीं, दौड़े नहीं, जिस्म को थकाए नहीं, पुरवकार तरीके से चलेंगे तो इस्लाम का ये रोब है और इंसान की शख्सियत का भी रोब है। वहा ये चलते हैं और आपने दाएं बाएं नहीं देखना। नसीहत फरमा दी, आपने झंडा लिया और आपने चलना शुरू कर दिया। चल रहे हैं आप सल्लम से कुछ फासले पे चले गए, दूर चले गए। शेर खुदा के जहन में एक अजीम सवाल पैदा हुआ। बात काम की है, एक अजीम सवाल पैदा हुआ और जो आप सल्लम से पूछना भूल गए थे। सवाल पैदा हुआ जो आप सल्लम से पूछना भूल गए थे, और साथ जहन में यह भी ख्याल आया, आपने फरमाया था दाएं बाएं नहीं झांकना, मोड़ के नहीं देखना, खैबर की तरफ सीधे चलते रहना है। अब वापस जाता हो या वापस चेहरा फेर के आपसे पूछता हो यहां आ, तो आपने हुक्म दिया है मोड़ के नहीं देखना, आगे चलते रहना है। सवाल भी बड़ा अजीम था, बड़ा अजीम सवाल था, मैं आगे बताता हूं। लेकिन यहां पे देखें, इताअत अजीम नुक्ता है। इताअत अदब के ऊपर फौकियत रखती है। अरबी का मकूला भी है अल अम्रु फौकल अदब। अरबी का मकूला है अल अम्रु फौकल अदब।
अदब के ऊपर अमर फौकियत रखता है। अदब है लेकिन हुक्म को तरजीह देनी है। आप सल्लम का अदब था लेकिन साथ हुक्म था, चलते जाना है, दाएं बाएं नहीं देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। तो हमारे लिए जरूरी है हम बतौर मुसलमान अहले ईमान कुरान का अदब करते हैं लेकिन हुक्म नहीं मानते। अदब करते हैं, कुरान का हुक्म नहीं मानते। माजरत के साथ कुरान को उठाया, आंखों के साथ लगाया, उसका बोसा लिया, चले गए, अदब कर रहे हैं। मेरा दोस्त अदब जरूर है लेकिन हुक्म इस पे तरजीह रखता है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ते नहीं है। मस्जिद का अदब करते हैं, मस्जिद है, मस्जिद है, ख्याल से चलना। अजान का अदब करते हैं, अजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हैं या टेलीविजन चल रहा है, अदब के तौर पे बंद कर देते हैं। अजान का अदब है, जरूरी है, लेकिन अजान के अदब के ऊपर हुक्म है नमाज के लिए आना है, नमाज के लिए आना है। हम अदब की तरफ चल पड़े, बस हुक्म कौन मानेगा, हुक्म कौन मानेगा। शेर खुदा की सीरत से यह बात समझ आती है, अल अमरु फौकल अदब, अदब के ऊपर अमर हुक्मियत रखता है, ताकत रखता है। अदब भी जरूरी है लेकिन अमर को तरजीह देनी है, अमर को तरजीह देनी है। लोग जहां अदब कर रहे हो उनको करने दे, लेकिन साथ यह कहे हुक्म इस पे ज्यादा फोकियत रखता है। वापस अपनी बात पे है। अहम जहन में सवाल पैदा हुआ, सवाल यह था, चलते चलते खैबर की तरफ आपका चेहरा था, चलते चलते फासले पे थे, वहीं से जोर से आवाज लगी, जोर से आवाज लगी, मोड़ के नहीं देखा, जोर से आवाज लगी, या रसूल अल्लाह अला मा उकातिल, मैं क़िताल करने तो जा रहा हूं लेकिन ये सवाल करना भूल गया, इनके साथ किस चीज पे क़िताल करना है और कब तक करना है। सवाल बड़ा अहम था, यहूदियों के साथ क़िताल करना है, कब तक करना है, किस चीज पे क़िताल करना है, अला मा उकातिल। आप सल्लम ने जब ये जुमले सुने, चेहरा खैबर की तरफ है, मुड़ के नहीं देखा, यह हुक्म है, यह है हुक्म, यह है इताअत। फौरन चलते हुए आपने पीछे से आवाज दी, फरमाया कि कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, चलते जाओ, जाके इनके साथ क़िताल करो, उस वक्त तक क़िताल करते रहो जब तक फितना खत्म हो जाए, और उस वक्त तक क़िताल करते रहो यहां तक कि सारा का सारा दीन अल्लाह ताला का हो जाए। यह बात सुनी और चल पड़े, खैबर की जंग लड़ी, लड़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हाथ से फतह दी, आपके हाथ से फतह दी। अब यहां पे जो आखिरी बात है, आपके हाथ से फतह दी, फतह की दो मरकजी नुक्ते हैं, फतह हासिल करने के दो मरकजी नुक्ते हैं। वो क्या है? युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह दी है, फतह दी है। आज हम भी चाहते हैं कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम हमारे साथ मोहब्बत करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, आप सल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे। दुनिया की किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, किसी ताकत को हासिल करना चाहते हैं, तो उसका मरकजी नुक्ता यही है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत कर ले। जो मोहब्बत करने का हक है, मुश्किल से मुश्किल चीज क्यों ना हो, अल्लाह ताला इंसान को हासिल दे देगा, हासिल हो जाएगी, अल्लाह ताला दे देगा। शर्त यह है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो। इंसान अमल कर रहा है लेकिन मोहब्बत नहीं है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिल्लाह फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। ऐ लोगों, अगर तुम कहते हो हम सारे के सारे अमल से, दीन से फिर जाए, दीन खत्म हो जाए, नहीं, दीन खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसी कौम को ले आएगा, ऐसी कौम आएगी, वो कौम अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करती होगी, अल्लाह अल्लाह के रसूल भी उनके साथ मोहब्बत करते होंगे, दीन कभी खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगले खुतबे को
سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اختتام کریں گے، لیکن اگلے خطبے میں بڑی اہم باتیں ہیں اور بڑے اہم نکات ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں، اس فتنے کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں چاہت نہیں ہے، میں دل سے اظہار کر رہا ہوں، افسوس بھی ہے، ہمیں خواہش نہیں ہے سیرت علی جو حق ہے سننے کا، سمجھنے کا اور حاصل کرنے کا اور سمجھنے کی خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے۔ کس انداز میں موتی چن چن کے آپ کے سامنے رکھے گئے، میرے دوست جانتے ہیں کس تکلیف میں ہوں، اس کے بعد بھی آپ کے پاس موتی رکھے گئے، پرواہ نہیں ہے۔ محبت ہے، اگر محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت کو سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی، اپنے اولاد اور بیٹوں کو سمجھیں تاکہ صحیح معنی میں ہمارے اور ہماری اولاد، ہمارے بیٹے خلفائے راشدین سے صحیح معنی میں محبت کریں۔ فتنے تو سب پھیلا رہے گے، نجائزیاں تو سب کر رہے گے، ہم بھی شامل کیوں نہ ہو جائیں اس میں؟ اس لیے سیرت علی کو بیان کیا جا رہا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شیر خدا سے اس انداز میں محبت کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ اگلے نقطے، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ سیدنا علی مرتضیٰ علم کا دروازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں، یہ بات آپ سنی، اس بات کو واضح کریں گے اور بتائیں گے انہی کی کتابوں اور اہل سنت کی کتابوں سے کس انداز میں یہ حدیث ہے، یہ واقعہ کیا ہے اور یہ مکمل بات کیا ہے۔ اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی طرح اپنے بتوں کو توڑا تھا، اس بات کو بھی ظاہر کریں گے۔ یہ ہے شیر خدا کی سیرت، اگر سمجھنا چاہتے ہیں وقت کی پابندی ضروری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه۔ دعا کی ایک درخواست ہے، ہمارے قریبی ساتھی اور دوست بھائی عبد المجید صاحب ہیں، ان کی طبیعت کافی دنوں سے ناساز ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اپنی انفرادی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین انہیں کامل اکمل مکمل صحت عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سفید اسرمال ہے۔